بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گڈ طالبان کا تاثر ختم ہونا چاہیے. آج کے بعد اس کی کوئی گنجائش نہیں. صوبے میں کوئی بھی شخص اسلحہ کے ساتھ نظر آیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. جو گڈ طالبان کی سفارش کرے گا اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی اے پی سی کے بعد پریس کانفرنس. کہا وفاقی حکومت کا وفود افغانستان بھیجنا آئین کی خلاف ورزی ہے. اسحاق ڈار اور محسن نقوی میرے صوبے کی نمائندگی نہیں کر سکے. میرا صوبہ ہے, مجھے چلانے دیں. صوبے میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی. دہشت گردوں کے خلاف کوئی ڈرون استعمال نہیں ہوگا. بارڈر پر آمد و رفت کو روکنا وفاق کی ذمہ داری ہے. وفاق ہمارے واجبات فوری ادا کرے. انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک کے سلسلے میں سندھ بھی جائیں گے. بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی جو جرگہ آپ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا جائے, اس کے اندر جو آپ نے 2 دفعہ اپنے نمائندے بھیجے ہیں تو ہمیں تحفظات ہیں اس کے اوپر کہ اسحاق ڈار صاحب میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتا. محسن نقوی صاحب میرے ساتھ نہیں کر سکتے. محسن نقوی آپ کو بڑا پیارا ہوگا تو مہربانی کریں, پہلے صوبائی حکومت کے بغیر آپ اس طرح کے جو ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں یہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. میرے صوبے کا فیصلہ, میرے صوبے کی بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ, میرے صوبے کے بیٹھے ہوئے مائدین, میرے صوبے کی بیٹھی ہوئی وہ لوگ جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ کریں گے. کہ کوئی بھی آپریشن ہم الاؤ نہیں کرتے, نہ ہونے دیں گے. اور پھر میں ان پارٹیوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کے صوبے کا عمان کا مسئلہ ہے, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آپ اس میں کوئی بھی انپوٹ دینا چاہتے ہیں, رائے دینا چاہتے ہیں, دوبارہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ میٹنگ بلائی جائے تو میں بحیثیت وزیر اعلیٰ میں اس کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. آپ کے خیبر پختونخوا میں دیر پام کے قیام کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی میزبانی میں آل پارٹیز کانفرنس میں 6 نکات مشترکہ لاحمل پیش کر دیا گیا. ان کیمرہ سیشن میں امن و امان کی صورتحال اور حکومت اقدامات پر بریفنگ دی گئی اور اتفاق کیا گیا کہ دیر پام کے لیے فوری اقدامات, خارج کے خلاف انٹیلیجنس کارروائیاں, تمام جماعتوں اور اداروں کا بلا تفریق تعاون, دہشت گردی سے نجات اور خوشحال خیبر پختونخوا کا عزم. ضلعی سطح پر مستقل اشتراک کا اعادہ, شہداء سے اظہار یکجہتی پر اتفاق کیا گیا. کانفرنس میں زور دیا گیا کہ امن کی بحالی ہی ترقی کا واحد راستہ ہے اور اس کے لیے سیاسی عوامی اتحاد ناگزیر ہے. کانفرنس میں صوبائی وزراء, اراکین اسمبلی اور مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے شریک ہوئے, جن میں جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام سین, مسلم لیگ نون, تحریک انصاف اور قومی وطن پارٹی شامل تھی. سابق گورنر شوکت اللہ اور شاہ فرمان نے بھی شرکت کی. ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم. رائے کے مطابق ایشیا کپ کے بارے بھارت کچھ دن بعد بتائے گا. ایشین کرکٹ کونسل کی سالانہ جنرل میٹنگ اور مختلف امور پر فیصلے مؤخر. جبکہ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے کہا میٹنگ اچھے ماحول میں ہوئی. ایشیا کپ کے شیڈول سے متعلق بی سی سی آئی سے بات چیت جاری ہے. کچھ لوگ ڈھاکہ نہیں آ سکے, ایسا ہوتا ہے. میں بھی سنگاپور نہیں جا سکا تھا, شیڈول کی وجہ سے ایسا چلتا ہے. بڑی بات یہ ہے کہ تمام ممبران آئے, کھیل میں سیاست نہیں چاہتے. We have 25 members in ACC. All 25 members participated in this meeting. None of us wants politics inside any of our organizations. It was a very good meeting in a very good atmosphere. We are in the consultation with BCCI and we will hopefully resolve that also very soon. Several countries were not able to come to Dhaka. It happens every time. Whenever you have meeting, I was go to Singapore. Lot of people can't come because of their schedules also. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کو سنجیدہ مذاکرات کی دعوت دے چکا ہے, اب فیصلہ بھارت کو کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار امریکہ کے اعلیٰ سطحی دورے پر ہیں. اسحاق ڈار نے سلامتی کونسل میں غزہ, فلسطین اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر پاکستان کا موقف پیش کیا. ترجمان نے کہا پاکستان نے جموں کشمیر اور فلسطین پر عالمی فورمز پر آواز بلند کی. سلامتی کونسل کی قرارداد 2000 کہا کہ 2788 میں پرامن حل پر زور دیا گیا. پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی اور امداد اور 2 ریاستی حل کی حمایت کی ہے اور فلسطین میں انسانی بحران پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. In New York, Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar participated in the general debate of the ministerial segment of UN High-Level Political Forum, as well as regional and international issues, including the situation in Gaza and Ukraine and Jammu and Kashmir dispute. He reaffirmed Pakistan's support for Palestinian statehood, called for an immediate ceasefire in Gaza, and opposed Israel's illegal annexation plans in the West Bank. Resolution 2788 on strengthening mechanisms for peaceful settlement of disputes in a UN SC session presided by
Deputy Prime Minister and Foreign Minister. Implementation of the Arab and OIC-led reconstruction plan for Gaza and revival of the two-state solution. तहरीक इंसाफ के रुकन खैबर पख्तूनख्वा शकील खान ने इतराफ़ किया, सेनेट इलेक्शन में हमें तैयार पर्चियां दी गई, मोहर और नंबर्स लगे हुए थे, तैयार वोट मिला जो बैलेट बॉक्स में जाकर डाला। दीगर वोटर्स को भी तैयार बैलेट पेपर्स दिए गए। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर समेत दीगर लोग बैठे हुए थे। वज़ीर आला ने सबसे आखिर में वोट कास्ट किया। मुख्तदर हल्कों की ख्वाहिश पूरी हो गई। इस हवाले से शकील खान की जानिब से बात की गई, हमें तैयार पर्चियां दी गई, मोहर और नंबर्स लगे हुए थे। शकील खान ने इतराफ़ किया, तैयार वोट मिला जो बैलेट बॉक्स में जाकर डाला। पीटीआई एमपी शकील खान ऐसा कहते हैं। वज़ीर आला ने सबसे आखिर में वोट पोल किया, ये कहा गया शकील खान की जानिब से। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के हवाले से शकील खान ने ये इतराफ़ किया है। 5 अगस्त की तहरीक की कॉल बानी ने दी है। बानी पीटीआई के लिए तहरीक चलाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीटीआई एक बड़ी सियासी पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट कर खड़ी है। सेनेट इलेक्शन खुश उसलूबी से हुए। इस मुद्दे को आगाह करें कि 5 अगस्त की तहरीक की कॉल बानी ने दी है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ऐसा कहा गया। 5 अगस्त की तहरीक की कॉल बानी की जानिब से दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। इस राय के मुताबिक पहले मरहले में 9 मई के मुकदमात में सजा याफ्ता MNAs और MPs की नशिस्तें खाली करार दी जाएंगी। नशिस्तें खाली होते ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का फैसला कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन में अहम मुशावरत में फौरी इंतखाबात पर इत्तफाक किया गया है। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन के अमल अगले चंद दिनों में शुरू होने का इम्कान है। इसी पर बात करते हैं। एंकर पर्सन अलीना शिगली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अलीना साहबा, ये मामला सामने आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन तैयारियां कर रहा है उन नशिस्तों पर जिनसे मुतल्लिक 9 मई के हवाले से फैसले सामने आए हैं, ऐसा क्या होने जा रहा है मजीद? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जराए हमें बता रहे हैं कि ये तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और 3 से 4 रोज में अब ये जो नशिस्तें होंगी, जिसके हवाले से जो आपको पता है कि 9 मई के जो मुकदमात में जो सजाएं सुनाई गई हैं, वो बाकायदा तौर पे जो अदालती फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल भी हो चुका है और मौसूल होने के बाद अब बाकायदा तौर पे डीन ऑफ नोटिफिकेशन के साथ साथ ही नए इलेक्शंस का यानी कि बाई इलेक्शंस का ऐलान किया जाएगा, वो शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि जो ये बात प्रीएम्प्ट कर रही थी, जिसको ये बात पता है कि उसको पार्लियामेंट से मुकम्मल तौर पर आउट करने के लिए जो है वो तैयारियां हो रही हैं और की जा रही हैं। और अगरचे उनके पास कानूनी तौर पे उनके पास अपील का हक मौजूद है और 30 रोज के अंदर वो अपील भी दायर कर सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले पे कोई स्टे आ जाता है तो इन दैट केस वो जाहिर है बाई इलेक्शन की तरफ मामला नहीं जाएंगे। लेकिन अगर तो उससे पहले जो सूरत हाल में जमशेद दस्ती साहब की भी सीट के हवाले से नजर आ रही है, जिसमें शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है, अब तक ताहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या उनकी इस वक्त स्ट्रैटेजी में ये बात ज़ेर गौर नहीं नजर आती कि वो अपील कर रहे हैं। और वो कब तक कर रहे हैं, 30 रोज का उनके पास अगरचे वक्त जरूर मौजूद है, लेकिन वो कब तक करेंगे ये भी देखना होगा। लेकिन 3 से 4 रोज में हमें बताया जा रहा है इलेक्शन पाकिस्तान के जराये के मुताबिक कि 3 से 4 रोज में इलेक्शन बाई इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये भी मैं लुकमान बताती चलूं कि काफी कशमकश का शिकार है। बहुत सारे लीगल बैटल्स और कानूनी जंग जो है वो उनकी मजीद कॉम्प्लिकेटेड होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ उनको अपनी लीडर की रिहाई के लिए सूरत हाल को कंड्यूसिव बनाना था, ना सिर्फ वो बल्कि रिजर्व सीट्स का भी फिर मामला इसी तनाजुर में देखा गया, रिजर्व सीट भी उनकी चली गई। उसके बाद जो है अब इनके जो वर्कर्स और उनके जो MPs और MNAs हैं वो इस तरह से 9 मई के मुकदमा जिसकी तलवार इनके सरों पे लटक रही है और अभी भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो है एक बड़ी तादाद है जिनको इस किस्म के कन्विक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो सजा याफ्ता अब ये जो अरकान है इनके खिलाफ जो इंतखाबी इलेक्शन का बाकायदा तौर पे हमें आगाज नजर आएगा, वो 3 से 4 रोज में शेड्यूल के ऐलान के बाद ये माहौल हमें बनता हुआ दिखाई देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाइक आई सेड के मुश्किलात में इस वक्त जरूर मौजूद है, लेकिन एक तरफ वो 5 अगस्त की तहरीक का भी ऐलान कर रहे हैं और वो इस बात को, इस पूरे तनाजुर को इससे लिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की जो सजाओं की जो बारिश हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने एक तहरीक का ऐलान 5 अगस्त को किया हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बहरहाल मैं ये भी लुकमान साहब नाज़रीन को भी बताती चलूं कि जो मुराद सईद साहब जो कि सेनेट इस वक्त आपको पता है सेनेट के इलेक्शंस में जो वो उन्होंने काफी और सबसे ज्यादा एडिशनल वोट्स लेकर वो जीते हैं,
मुराद सईद साहब की सीट के भी हवाले से आपको हुकूमती सर्कल से तो ये बात सुनाई दे रही है, और बरमला भी जिसका हुकूमती वुज़रा और जो सियासी मुशीर हैं, स्पेशली वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह साहब, उनकी जानिब से भी ये बात जो स्ट्रेस दी जा रही है कि मुराद सईद साहब की सीट जो है वो खटाई में पड़ सकती है, और ये उसी अमेंडमेंट और उस ऑर्डिनेंस का हवाला दिया जा रहा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई थी, और उसके जरिए जो है वो हल्फ लेने के प्रोविजन के हवाले से कि अगर वो 60 दिन के अंदर हल्फ नहीं लेते तो उनकी ये सीट जो है वो खटाई में पड़ जाएगी, उनको डी सीट हो जाएंगे। तो इस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हम नाज़रीन को बताते चलें, सोच विचार हो रही है, इस पर गुफ्तगू हो रही है, और क्लैरिटी 1 से 2 रोज में सामने आ जाएगी। वाज़ेह तरीके से बता दिया जाएगा कि इस सीट पे लॉ जो है वो एग्जिस्ट करता है, और लॉ क्या कहता है। मुराद सईद साहब को वाकई में क्या 60 रोज के अंदर उनके लिए एक प्रोविजन बरकरार है कि वो हल्फ 60 रोज के अंदर वो लेंगे, और अगर नहीं लेते तो वो डी सीट हो जाएंगे। तो मुराद सईद साहब की भी सीट के हवाले से काफी ज्यादा सवालात रेज हो रहे हैं, काफी कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में भी कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं, और नजर आ रहा है कि मामला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो इस पर सरगर्म है, और कानूनी और आईनी तरीकेकार को अपनाते कानूनी और आईनी पीटीआई की जंग तवील होती जा रही है। बहुत शुक्रिया एंकर पर्सन अलीना शिगरी साहब हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब सेनेटर्स इस वक्त अपने ओहदे का हलफ उठा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब सेनेटर्स ने सेनेट में हलफ उठा लिया है, और चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ रजा गिलानी ने उनसे हलफ लिया है। आलमी क्रेडिट इदारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बहाल। आलमी क्रेडिट एजेंसी ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी कर दी है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से B- कर दी। इससे पहले फिच रेटिंग्स ने भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर की थी। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे से बैलेंस ऑफ पेमेंट की सूरत हाल बेहतर हुई है। हुकूमत की जानिब से रेवेन्यू में इजाफे और महंगाई में कमी की कोशिश माली इस्तेहकाम का बायस बनी है। उम्मीद जाहिर की गई है कि पाकिस्तान को आइंदा भी बैन अवी मालियाती इदारे की सपोर्ट हासिल रहेगी। बलूचिस्तान के इलाके ढिगारी में गैरत के नाम पर मर्द और खातून के कत्ल के केस में बड़ी पेशरफ्त। मकतूला बानो बीबी की वालिदा गुलजान वीडियो बयान जारी करने पर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मकतूला खातून का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। गुलजान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी करदा वीडियो में कत्ल की हिमायत की और गिरफ्तार अफराद को बेगुनाह करार दिया। पुलिस का कहना है कि यह बयान दोहरे कत्ल की हिमायत और इंसाफ के अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश के मुतरादिफ है। उनका कहना था कि लड़का टिकटॉक वीडियोस बनाता था जिससे उनके बेटे मुश्तिल होते थे। गुलजान ने वीडियो में कहा, फैसला बलोची रस्म व रवाज के तहत किया गया था। पुलिस के मुताबिक दोहरे कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम जलाल ताहाल मफरूर है और इसकी तलाश जारी है। टैक्स चोरी रोकने का मिशन तंबाकू सेक्टर की मुकम्मल मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का फैसला। तंबाकू सेक्टर में 300 अरब रुपए की टैक्स चोरी रोकने के लिए मॉनिटरिंग का आगाज कर दिया गया। तंबाकू के पत्तों के GLT यूनिट्स पर FBI टैक्स अफसरान तैनात कर दिए गए। GLT यूनिट्स पर ट्रैकिंग से गैर कानूनी तंबाकू की फ्राहमी रोकी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों से सैलाबी रैलों से 100 से ज्यादा घर मुनहदिम, 6 अफराद जाँ भाग। तर्जुमान फैजुल्लाह फराक के मुताबिक 100 से ज्यादा घर मुनहदिम हो चुके हैं। घांचे में बादल फटने के बाद सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई, जबकि थोर, तांगीर, दनियोर, बाबूसर और शिकार कोई भी सैलाबी रैलों की इतलात मौसूल हुई हैं। रेस्क्यू सर्च और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। शहर बाबूसर से खाली गाड़ी निकाल ली गई, जबकि शहर रेशम ट्रैफिक के लिए खुली है। अब तक 6 जख्मियों को रेस्क्यू करके तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि 6 जांबाक अफराद की मैयतें निकाली जा चुकी हैं। 300 से ज्यादा फंसे हुए सयाहों को गिलगित, स्कर्दू और चिल्लास मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि बाकी मुसाफरों को शहर रेशम या C-130 के जरिए रवाना किया जा रहा है। वज़ीर आला ने तमाम 14 अजला की इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत कर दी है। हजरू में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद, शेंका के मुकाम पर 51 अफराद फंस के रेस्क्यू ने 5 घंटों के कामयाब ऑपरेशन के दौरान तमाम 51 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। फंसे हुए अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। रेस्क्यू किए गए अफराद में 33 बच्चे, 12 खवातीन और 6 मर्द शामिल हैं। तीसरा T20 पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 179 रन का हदफ दे दिया है। शाहजाद फरहान की 41 गेंदों पर 61 रन की इनिंग। हसन नवाज ने 33 रन बनाए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को व्हाइट वॉश से बचने का चैलेंज दरपेश है। बांग्लादेश सीरीज पहले ही 2-0 से जीत चुका है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर आज फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए 179 रन का टारगेट दिया है। पाकिस्तान की जानिब से शाहजाद फरहान, जिनको आज मौका दिया गया था, 41 बॉल पर 63 रन किए। साइम अयूब ने 21 रन किए और मोहम्मद आरिस 5 रन बनाकर आउट हुए। हसन नवाज ने 17 पर
33 रन किए। सलमान अली आगा ने 9 बॉल पर 12 रन किए। हुसैन तलत ने 4 बॉल पर 1 रन किए। मोहम्मद नवाज ने 16 बॉल पर 27 रन किए। फ़हीम अशरफ ने 2 बॉल पर 4 रन किए। अब्बास अफरीदी 3 बॉल पर 1 रन बनाए और नॉट आउट रहे। 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का ये आखिरी मैच है। दिन भर जारी रहने वाली बारिश ने लाहौर की सड़कों को नदी नालों में तब्दील कर दिया। वासा और इंतजामिया सिर्फ पोश इलाकों में पानी निकालने में मसरूफ है। कई महलों और रहायशी कॉलोनियों में निकासी आप का कोई मौसर इंतजाम नजर न आया। ठोकर परवाह के वेस्ट रोड कॉलोनी में जमा पानी से सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया, जहां गंदा पानी गलियों में खड़ा होने की वजह से डायरिया फैलने लगा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदे ABN न्यूज़ मोहम्मद अली नासिर से। जी बिल्कुल, लाहौर के अंदर मानसून बारिशों का शदीद स्पेल जारी है। आज दिन के वक्त लाहौर के अंदर होने वाली बारिश के बाद की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी अभी भी जमा है और वासा और इंतजामिया का कोई अहलकार भी पानी निकालने के लिए यहाँ पर नहीं मौजूद। मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 48 घंटों बाद लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मजीद तेज और मूसलाधार बारिश होगी। दिन के वक्त मौसम बादलों की लपेट में रहा और खूब बारिश भी हुई। लाहौर के तमाम तर मकामात पर बारिश हुई, खासतौर पर ठोकर, राइवल रोड, जोहर। PDM ने हिदायत जारी की है कि शहरियों को चाहिए कि जब बादल बने हो, बिजली चमक रही हो या बारिश हो रही हो तो खुले मकाम पर ना जाएं ताकि बिजली आप पर ना गिरे, जिसकी वजह से कोई बड़ा सान्या ना हो। बहरहाल लाहौर की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि पीछे आपको पानी नजर आ रहा है, लेकिन वासा और ज़िले इंतजामिया यहाँ पर पानी को निकालने के लिए नहीं मौजूद। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।